हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, आज आप लोगों का सोशल साइंस का एग्जामिनेशन था और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छा करके आए होंगे, आप कोई प्रश्न छोड़े नहीं होंगे। और मैंने दोनों सीटिंग के परीक्षाओं का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो आंसर है उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप उससे अपना आंसर मिला लीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितना सही बनाए हैं। तो आज मैं आपको 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप इन सारे प्रश्नों को निश्चित रूप से याद कर जाइए, क्योंकि इसमें से लगभग 40% आपका क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित रूप से टच कर जाएगा। तो इस सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देखिए, याद कर जाइए। इसमें मैं आपको 50 प्रश्न बताऊंगा और 50 प्रश्न मैं आपको सुबह में दूंगा। 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न में से आपका 60% प्रश्न लड़ जाएगा, यानी परीक्षा में आएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ इन डैश कॉर्न मार्चेंट। डैश कॉर्न मार्चेंट। योर ऑप्शन इज elderly, handicapped, young and diabetics। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, elderly। ऑप्शन ए आपका आंसर सही होगा, elderly। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द travelers the real dash of travels। your option is pains, pleasure, dreams, knowledge। here option number B is the right answer, pleasure। next question is, slow thinker have a disadvantage when it comes to earning a dash। your option is car, secretary, living, holiday। here option number C is the right answer, living। Next question is, in this lesson the author compares Indian films with dash films। in this lesson the author compares Indian film with dash films। your option is Korean, Japanese, Western, Pakistani। here option number C is the right answer, Western film। Indian films compares with the Western film। option number C is the right answer। next question is, the cinema dash is various measures the function of poetry, music, painting, drama, architecture and a host of other arts, major and minor। here option is combines, destroys, deletes and rescues। here option number A is the right answer, combines। option number A is the right answer, combines। next question is, the old woman was dash enough to know she could not help the young people। the old woman was dash enough to know she could not help the young people। here option is stupid, intelligent, strong, suspicious। here option number B is the right answer, intelligent। option B is the right answer। next question is, the sadness of the slaves made them sit in their dash bench। here option is wrist, shoulders, spoons, legs। here option number B is the right answer, shoulders। option B is the right answer। next question is, every one of the slaves knew that the next stop will be their dash। every one of the slaves knew that the next stop will be their dash। here option is first, second, fourth, last। here option number D is the right answer, last। next question is, ode on solitude is written by, and who is the writer of ode on solitude? here option number A is Alexander Pope, number B is Leo Tolstoy, C is R.C. Hutchinson and D is Toni Morrison। here option number A is the right answer, Alexander Pope। option number A is the right answer। next question is, a happy man's wants are satisfied by the property inherited by him from his
Here option is uncle, mother, cousin and father. Here option number D is the right answer, father. Option number D is the right answer. Next question is, our day and year slide away dash for the happy man. Hours, days and years slide away dash for the happy man. Here option is hard, quickly, softly, tensely. Here option number C is the right answer, softly. Softly. Next question is, meditation dash the happy man. Meditation dash the happy man. Here option is sadness, silence, pleases or is disturbs. Here option number B is the right answer, pleasure. B is the right answer. Next question is, the poet does not want anything to make the place where he is. The poet does not want anything to make the place where he is. Here option number A is buried, B is sitting, C is hiding and D is the lost. Here option number A is the right answer, buried. Buried. Next question is, in this poem the poet talks about the difficult life of potter in this poem the poet talks about the difficult life of potters in the, your option is cities, villages, towns, hills. Here option number D is the right answer, hills. Next question is, the potter was going up a, your option is road, land, cliffs, platform. Here option number C is the right answer, cliffs. C is the right answer. Next question is, as a result of very hard work, the potters dash beat fast. As a result of hard work, the potters dash beat fast. Your option is pulse, heart, nerves, muscles. Here option number B is the right answer, heartbeat. Option B is the right answer. Next question is, the potter's son sipped with cold and was. The potter's son sipped with cold and was. Here option is afraid, angry, hungry, jealous. Here option number C is the right answer, hungry. Next question is, in the last line the reader finds the potter dash over the rich kingdom of slaves. Your option is ringing, thinking, crying, laughing. Here option number A is the right answer, ringing. Next question is, Mr. Gessler was a dash bootmaker. Mr. Gessler was a dash bootmaker. Your option is Russian, German, French, English. Here option number B is the right answer, German bootmaker. Option B is the right answer. Next question is, for Mr. Gessler, bootmaking was a. For Mr. Gessler, bootmaking was a. Your option is art, burden, job, time pass. Here option number A is the right answer, art. A is the right answer, art. Next question is, Mr. Gessler blamed the big firms for taking away the livelihood of dash like himself who worked on a low scales. Your option is shopkeepers, landowner, bearers, worker. Here option number D is the right answer, worker. Option number D is the right answer, worker. Next question is, when the author visited Mr. Gessler's shop after a gap of nearly 2 years, he found another dash name also painted on one of the windows of the shop. Your option is bootmakers, bakers, florists, yeah, plumber. Here option number A is the right answer, bootmakers. Next question is, the young man admitted that Mr. Gessler was the best bootmakers in. The young man admitted that Mr. Gessler was the best bootmaker in dash. Your option is Berlin, Tokyo, London, Paris. Here option number C is the right answer, London.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट हैज़ बीन रैनिंग फॉर ए वीक. It has been raining for a week. Your option is present indefinite tense. You have to choose this sentence tense. Your option is present indefinite tense, present imperfect continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. So your option number D is the right answer. Present perfect continuous tense. Option number D is the right answer. It has been. जिस सेंटेंस में हैज़ बीन का प्रयोग होता है, आप याद रहे, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है. तो आपका ऑप्शन डी सही होगा. नेक्स्ट, ही वेंट होम. आपको बताना है कि यह किस टेंस का वाक्य है. तो देख लीजिए, ही वेंट यहाँ वर्ब का दूसरे रूप का प्रयोग किया गया है. और आप याद रखिए, जब भी वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है. तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही होगा. जब भी V2 देख लीजिए, आप समझिए सिंपल पास्ट का वाक्य है. नेक्स्ट, ही वॉज टीचिंग इन द क्लास. ही वॉज टीचिंग इन द क्लास. आपको बताना है किस टेंस का वाक्य है. तो ही वॉज के बाद क्या किया है? वाज के बाद V4 का प्रयोग किया गया. और जब वाज के बाद V4 होता है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस होता है या पास्ट इम्परफेक्ट बोल सकते हैं. तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी, पास्ट इम्परफेक्ट. इम्परफेक्ट को ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. आपको बतानी यह वाक्य जो है किस टेंस का वाक्य है. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. तो देखिए यहाँ क्या किया गया, कुछ टेंस पास्ट इंडेफिनिट क्या है और कुछ क्या है पास्ट परफेक्ट क्या है. तो ऐसे वाक्य हमेशा क्या किए जाते हैं? पास्ट परफेक्ट में ही बनाए जाते हैं. तो ऑप्शन सी सही है आपका. ऑप्शन सी सही है. पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है. नेक्स्ट है, शी हैड बीन रीडिंग हिज बुक फॉर ए मंथ. शी हैड बीन रीडिंग हिज बुक फॉर ए मंथ. आपको बताना है यह किस टेंस का वाक्य है. तो देखिए, हैड के बाद क्या किया है? बीन लगाया. तो हैड का बीन लगाया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया. तो ऑप्शन कौन सही होगा? डी. हैड के बाद बीन लगाया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. नेक्स्ट, राजेश. आपको बताना है जो नाम है कोलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रोपर नाउन है या कंपाउंड नाउन है. यानी कौन सा नाउन है ये जो नाम दिया गया है. तो याद रखिए, जितना नाम राम, श्याम, मोहन, सोन कोई भी नाम हो वो हमेशा प्रोपर नाउन होता है. ऑप्शन सी आपका सही होगा. नेक्स्ट, आर्मी माने झुंड हो गया ना. कोलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्रोपर नाउन. यानी आर्मी क्या है? तो याद रहे, आर्मी संग्रह को बताता है. और तो ये क्या होगा? कोलेक्टिव नाउन है. ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट, गोल्ड. आपको बताना है गोल्ड कौन सा नाउन है. तो गोल्ड क्या है? द्रव्य है, मटेरियल है. तो आपका आंसर कौन है? ऑप्शन सी होगा, मटेरियल नाउन. नेक्स्ट, क्लास कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटेबल नाउन. ठीक. ऐसे क्लास को अगर इसमें दिया होता आपके ऑप्शन में कोलेक्टिव, तो हम कोलेक्टिव ही इसको मार सकते थे. लेकिन कंपाउंड दिया है तो कंपाउंड, काउंटेबल दिया है तो काउंटेबल ही हम मारेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, अगला डिफिकल्टी क्या है? कौन सा नाउन है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मटेरियल्स नाउन या कंपाउंड नाउन. तो आप यहाँ याद, डिफ़िकल्टी ये क्या है? डिफ़िकल्टी दिया गया है. और डिफ़िकल्टी जो होता है यह अनकाउंटेबल है, क्योंकि डिफ़िकल्टी दिक्कत को आप नहीं काउंट कर सकते ना. तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ आई वेयर ए किंग आई डैश मेक यू माई क्वीन. यदि मैं एक राजा होता तो मैं आपको क्वीन बनाता. तो यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है. क्या होगा? ऑप्शन दिएगा मस्ट, मे, वुड या शुड. तो आपका आंसर होगा वुड. हमेशा ऐसे क्वेश्चन में वुड का प्रयोग होता है. ठीक है. ऑप्शन सी सही होगा. नेक्स्ट, डैश गॉड ब्लेस यू. तो गॉड ब्लेस यू में हमेशा मे का प्रयोग हो. मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे. ऑप्शन बी सही होगा. नेक्स्ट, इट डैश रैन टू नाइट. इट डैश रैन टू नाइट यानी आपको ब्लैंक को भरना है. मस्ट, माइट, नीड या शुड. इनमें से कौन सा यहाँ फिल किया जाएगा? तो याद रहे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है तो माइट का प्रयोग करेंगे. ऑप्शन बी सही होगा. इट माइट रैन टू नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नो द नेक्स्ट लेसन अनिल डैश. ऑप्शन दिया गया है डू, हैव, डॉज,
वुड, तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉज। अनिल डॉज, अनिल के साथ क्या होगा, हमेशा V5 का प्रयोग होगा, तो डॉज लगेगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट एमओबी, मोब क्या है, एमओबी क्या है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है या कंपाउंड नाउन है। तो आप याद रहे एमओबी क्या है, या मोब, एमओबी एक कलेक्शन को इंडिकेट करता है अतः कलेक्टिव नाउन है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट माइन, MINE, माइन ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव है, पोसेसिव है या इंडिफिनिट है, यानी कौन सा प्रोनाउन है आपको ये बताना है। तो माइन हमेशा याद रखिए पोसेसिव प्रोनाउन होता है, ऑप्शन सी सही होगा, पोसेसिव। नेक्स्ट ही डैश नॉट हैव डॉन इट, ही डैश नॉट हैव डॉन इट, अब बताने इसमें क्या भरेंगे, मे, वुड, मस्ट या कैन। तो आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें मे भरा जाएगा, ही मे नॉट हैव डॉन इट, ही मे नॉट हैव डॉन इट, मे होगा। नेक्स्ट मच, मच आपको बताना क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ नंबर है या एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्या है आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो मच है, जो मच है यह एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी को बताता है मच में नहीं, ये दोनों एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट ओल्ड, ओल्ड आपको बताना क्या है, यह प्रॉपर एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव है या न्यूमेरिकल है या डिस्क्रिप्टिव है, क्या है ओल्ड, आपको बताना है ओल्ड क्या है। तो आपका आंसर होगा यह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट मदर, आपको बताना मदर क्या है, या मस्कुलिन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है या कॉमन जेंडर है। तो याद रहे ये जो मदर है यह फेमिनिन जेंडर है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट ही कैच ए कैट, उसने एक बिल्ली पकड़ा, यह क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है या वोकेटिव केस में है या पोसेसिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, किस में है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह ऑब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम राइटिंग ए पेपर एट प्रेजेंट, आई एम राइटिंग ए पेपर एट प्रेजेंट, मैं अभी एक पेपर लिख रहा हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, इट डैश रैन टू नाइट, फिर क्वेश्चन को दोहराएगा तो इट माइट रैन टू नाइट, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। 47 है टुडे, टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ नंबर है या एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आपका आंसर हो जाएगा जो टुडे है यह एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट मच, मच क्या है, तो अभी बताए थे दोहरा दिया गया है, तो मच एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बैडली, बैडली क्या है, बैडली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ मैनर। तो बैडली जो है आप याद कर लें, बैडली जो है यह एडवर्ब ऑफ मैनर है, ऑप्शन डी सही है। अगला इनसाइड, इनसाइड क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इनसाइड आउटसाइड दोनों क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखें, पढ़ लें, 2-3 बार इसको देखें ताकि याद हो जाए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।